हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विप्रो, कैपजेमिनी एंड टीसीएस की तरफ से हमारे पास कुछ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग मैं इसमें देख सकते हो फ्रेंड, मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करा था। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है बता दो फ्रेंड, इन्होंने अपना कैपजेमिनी का एग्जाम दिया था। आप देखोगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, today I hit my Capgemini on-campus assessment. I will it will up for you if your have exam tomorrow. Okay, तो उन्होंने क्या शेयर करा है, ठीक है। There were two assessment today, cognitive plus technical and coding. Cognitive plus technical assessment was further divided into three subparts: pseudocode plus IT, 25 codes and 15 MCQ. Easy writing 120 plus 220 words. Then third, game-based aptitude, random, and third for pseudocodes, practice a lot of pseudocode based on the for loop, if else and bitwise operator. I repeat, practice a lot because there are almost 20 pseudocodes to solve the rest 5-part tree and graph based question. For IT fundamental, if your basic are strong, it will be piece of cake. Do cloud computing services example very well. So, okay, clearing this sub part comes to the essay writing. Again, some points to write paragraph, intro plus body plus conclusion. Do not use backspace. You can use delete button to clear if required. Have an impactful intro and conclusion, 8 contests or real life example etc. 6. After clearing this, there is a game based aptitude. Again, there is a medium difficult level part. The games are adaptive and increase in difficulty as you level up. Try to be accurate and at the same time solve as many problems as possible. Okay, avoid making silly mistake. Practice game based aptitude on Technical Hub Capgemini website. They have exact same games. Okay, these are the point I think one should take care of to clear assessment 1. These are this assessment 2 with coding round, and only shortlisted students were allowed to be part of it. There are 2 questions, one was easy and other was medium. Okay, and thank you so much guys for sharing your experience Capgemini full detail exam pattern syllabus. Okay, so if you have exam Capgemini in upcoming days, you can just go through it because they have mentioned very clearly. Okay, next, this is for the Wipro. You already know that Wipro is currently hiring for the right exclusive WILP SIM, and candidates already getting the exam mail updates. In next exam on September 22nd. Okay, and the system requirement or assessment is supported by the below iOS system and device proper वगैरह. Okay, yes, definitely they are still sending the exam mail update who recently applied. And if you haven't applied, please do apply guys, because विप्रो की हायरिंग का लास्ट डेट है 30 सितंबर लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई करो, आपके पास डेफिनेटली एग्जाम का मेल देखने मिले। अगर अप्लाई कर दिए एग्जाम का मेल नहीं आया, डोंट वरी, विप्रो के एग्जाम फेज वाइज हो रहे हैं, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके पास एग्जाम के मेल काफी जल्द देखने को मिलेंगे, तो कोई डरने की बात है नहीं, ठीक है। विप्रो सभी को एग्जाम के मेल सेंड करती है, क्योंकि विप्रो का सुपरहिट हायरिंग है। सुपरहिट हायरिंग मास हायरिंग होता है, मास हायरिंग में ऑलमोस्ट सभी के पास एग्जाम के मेल देखने को मिलते हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है लाइट WILP SIM का एग्जाम पैटर्न सिलेबस को लेकर, आप लोग चाहो तो फिर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका विप्रो का एनजीए इंटरव्यू रिजल्ट 3 सितंबर 2024, और यहाँ पर आपको अपलोड अपने साइड राउंड को क्लियर कर लेते हो फ्रॉम द विप्रो, देन आपके पास इस तरह मेल आता है दैट वी आर एक्साइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल द स्टेज ऑफ आवर कैंपस हायरिंग प्रोसेस. Your skill, dedicated, and enthusiasm are impressed, and we are excited to welcome you to Wipro. Here are the next step. Letter of intent. You will receive a letter of intent shortly. This document will outline the detail of your offer and next step. Pre-screen training. Once the training is finalized by the project team, you will be further communication with the pre-screen training from your onboarding is subject to your successful completion of your pre-screen training. Correct. आपको pre-screen training complete करना पड़ेगा after receiving LOI. After completing pre-screen training program assessment, then only you are supposed to receive offer letter. You will receive a formal letter upon successful completion of pre-screen training. अगर आप प्रोसेस क्लियर नहीं करते हो तो आपको रिजेक्ट भी कर देंगे, तो ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन आया है प्री स्क्रीन ट्रेनिंग में, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, जिन्होंने असेसमेंट क्वालिफाई नहीं करा, कैप्शन प्रोजेक्ट वगैरह मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो लोगों को रिजेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, वंस यू रिसीव ऑफर लेटर, द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। ओके, यहाँ पर आपका मेल वगैरह दिया गया है, करेक्ट। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, तो ये देखोगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखोगे तो यहाँ पर कल तक थे 254, अभी हो गए 251 और 852, और अभी हो गए हैं 579। अब देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर माइनस देखोगे तो -3, करेक्ट, और यहाँ देखोगे तो -3। ओके, सो व्हाई द नंबर ऑफ डिक्रीजिंग, मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड, टीसीएस यहाँ पर टर्मिनेट ऑफर रिवोक करती है। कंडीशन वो नहीं है कि 6 मंथ कूलिंग पीरियड, वो कंडीशन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द, अगर आपको एक्टिव बैकलॉग है, क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हो, डॉक्यूमेंट रॉन्ग सबमिट किए हो, मान लो आपका 10th में 60% नहीं था बट आपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के सबमिट करा, तो ये सब अगर आप लोग पकड़ाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि आपको पता होगा जब भी आपका ऑफर रिलीज होता है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में टीसीएस काफी अच्छे से चेक करती है, मल्टीपल टाइम चेक करती है, तो इसकी इन दैट केस आपका वो ऑफर रिवोक भी कर सकते हो, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, अगर आप लोग टीसीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे तो। 6 मंथ कूलिंग पीरियड का कोई रिजेक्शन का कोई रीजन नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। सो दिस इज फॉर ऑफर रिवोक्ड फॉर दोज कैंडिडेट्स
कैंडिडेट्स हु आर हैव सबमिटेड सम रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स एंड दे हैव नॉट वेरीफाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट। तो आप लोग डरने की बात नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो रहा है बिकॉज मैंने पहले बताया था ऑफर लेटर के बाद बहुत सारे लोग पीजीसी को इनिशिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद टीचर्स मल्टीपल स्टेज में आपका प्रोसेस को चेक करती है, इस कारण से बहुत सारे लोगों का नंबर कम भी देखने को मिला, ठीक है। तो आई थिंक आई डिस्कस ऑल द पॉइंट, कवर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग। इसका कोई डाउट कमेंट पूछे ना, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।